Hello everyone, Sakshi here and I welcome you all on मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਈਡੀਅਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 4 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਈਡੀਅਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ 10 ਦੇ 10 ਈਡੀਅਮਸ ਦੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾबिक ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਈਡੀਅਮਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ PSCB ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀਅਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਲੈਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੀਵ ਨੋ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ। Third is wear and tear. Fourth is to add fuel to the fire. Fifth is build castles in the air. Sixth is at the 11th hour. Seventh is birds of the same feather. Eighth is to fight tooth and nail. Ninth is to call a spade. And the last is a white elephant. Okay, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो ਨੂੰ पॉज करियो तो अपने आंसर्स मार्क कर लियो। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सब तो पहला ईडियम है अ मैन ऑफ लैटर्स। ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਮੈਨ ਆਫ ਲੈਟਰਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਥਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਰ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਜਾਂ ਸਕੋਲਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸਕੋਲਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਲੈਟਰਸ the professor could easily speak for hours on the works of Shakespeare। देखो उन सेंटेंस का मीनिंग की बनया कि एज अ मैन ऑफ लैटर्स, क्योंकि जो प्रोफैसर है वो मैन ऑफ लैटर्स है, स्कॉलर है, या फिर एक ऐसा परसन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो ईजीली बोल सकता है घंटिया के लिए शेक्सपीयर के वर्क्स के उपर। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्नड, कि कोई भी स्टोन नू ना छड्डना जिन्हों कि उल्टा के ना देखा होवे। ਇਹਦਾ मतलब की है कि हर एक ऐसी कोशिश करना जो कि की जाए अपने वालों किसी चीज़ का रिजल्ट लैके आने दे लई। ओके, अगर यदा इंग्लिश मतलब देखिए तो कि होंगे टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव अ गुड रिजल्ट। ओके, कि जो चीज़ तुसी चाहते हो जाए उन्होंने करन दे लई ऐसी सारिया चीज़ां करनिया जो तुसी कर सकते हो। ओके, सो ये देखिए ट्राई एवरी पॉसिबल वे, बिहेव स्मार्टली, कंस्ट्रक्टिंग, वेस्टिंग नो टाइम। तो यदा आंसर क्या होगा फर्स्ट, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ओके, हुण एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड इन हिज सर्च फॉर हिज नैचुरल मदर। हुण देखो मे बी इत्थे कोई अडॉप्टेड चाइल्ड की गल हो रही है, तो उन्हें कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छड्डिया। मीनस उन्हें हर ऐसी पॉसिबल वे दे नाल कोशिश की अपनी मदर नू ढूंढन दे लई जो कि उहदी रियल मदर सी।
ओके, सो नैक्सट ईडियम है ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ। ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ। ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ, फर्नीचर और प्रॉपर्टी दैट इज़ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल यूज़। क्योंकि आप किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो खराब तो होगी ही। ओके, सो ये देखते हैं कि है अ ब्रांड नेम, डैमेज, अ लॉट ऑफ सॉरो, अ वार्निंग। इसका आंसर क्या होगा? बी, दैट इज़ डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, दिस सोफा शोज अ लॉट ऑफ wear and tear, we should replace it। मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਫਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਟੂ ਐਡ ਫਿਊਲ ਟੂ ਦ ਫਾਇਰ। ਇਹ ਐਸਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ आग में घी डालना। ठीक है, आग में घी डालना ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਗ 'ਚ ਘੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਊਲ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ अपनी गल्लां नाल या कुछ ऐसा करके और मैटर नू होर ज़्यादा वर्स बना देना। सो देखते हैं टू मेक मैटर्स ब्राइटर, टू कॉज एडिशनल एंगर, टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन, टू स्टार्ट अ रिवोल्ट। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, दैट इज़ टू कॉज एडिशनल एंगर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शाउटिंग एट अ क्राइंग चाइल्ड just adds fuel to the fire। कि एक बच्चा पहला ही रो रहा है, ठीक है, तो तुसी उपरों दी उहनूं होर झिड़क दो तो की करूगा? होर रोन लग जाऊगा। तो वो थोड़े झिड़कन ने की काम किया? उरे अग च घी पाउण दा। ओके, ये मतलब है। सो इहनूं याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। एक होर गल मैं कहना चाहनी है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम थोड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा घट होंदी है। देखो मैं माइक यूज़ करदी हैं वीडियो बनाने के लिए, तो वॉइस जी होंगी वो बिल्कुल करैक्ट होंगी। अगर तुम लैपटॉप सुनोगे, फोन च आपां अगर ईयरफोन्स तो बगैर सुनांगे तो आपां नूं घट सुनाई देगी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ क्योंकि गर्मी है तो फैन चलता होंगे, कूलर चलता होंगे या AC चलता होंगे, तो ਉਹਦੀ वजह तो नॉइज़ क्रिएट होंगी है, जिसकी वजह तो ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज़ घट सुनती होगी। सो बैटर है जो भी तुसी वीडियो देखते हो मेरी, तो तुसी ईयरफोन्स का यूज़ करया करो, थोनू एन क्लीयर आवाज़ सुनूगी। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ड कासल्स इन द एयर मतलब क्या है? हवा च महल बनाना, या कई बोल देंगे हवाई महल बनाना। जिहड़ा ये वाला ईडियम है उहदा यूज़ उदों किया जाता है किसी ऐसे परसन के लिए यूज़ किया जाता है जिहड़ा कि गल्लां च ही बहुत ज़्यादा चीज़ां अचीव कर लैंदा है। मतलब उन्हें वैसे कोई कोशिश नहीं करनी करन दी, बस गल्लां दे नाल ही सारा कुछ अचीव कर लेंदा हो। ठीक है, मीनस ऐसे प्लैनस या ऐसे ड्रीम्स जिहड़े कि नहीं पूरे हो सकते ਉਹਦੇ बारे सोची जाना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बिल्ड कासल्स इन द एयर। ओके, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? वेस्ट टाइम, डे ड्रीम, बिल्ड हाउसेज या वर्क हार्ड। ਇਹਦਾ आंसर आऊगा डे ड्रीम, कि ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ ड्रीम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀबिलिटी नहीं है। ओके, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ महल ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है, ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए ये चीज़ नहीं हो सकती, बट सोचन तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। ओके, सो अगर ये एग्जाम्पल देखिए तो की है? योर प्लान इज merely a castle
इन द एयर, कि जिहड़ा तेरा प्लान है वो एयर च कासल की तरह है, मीनस कि वो कोई वैलिड प्लान नहीं है, पूरा नहीं हो सकता। ओके, या आपां कहंदे नहीं कईयां नूं भी तेरियां गल्लां ही ने, तेने करना कुरना कुछ नहीं हैगा, वो मतलब हुंदा इहदा। ओके, सो नैक्सट है एट द 11th आवर। हुण अगर आपां क्लॉक देखिए, क्लॉक दे विच टोटल 12 आवर्स हुंदे आ। ओके, सो अगर आप 11th आवर की गल करिए, मतलब कि हो गया जोड़ा लास्ट आवर हो गया। सो जोड़ा ईडियम है एट द 11th आवर, यदा मतलब कि होंगे कि लास्ट पॉसिबल टाइम दे विच कुछ करना। ओके, सो देखिए एट द 11 o'clock, एट द रॉन्ग टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, या एट द इनिशियल मोमेंट इटसेल्फ। यदा आंसर क्या होगा 3, दैट इज एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एग्जाम्पल दस दिए, थोनू फिर समझ आ जाऊगा कि ਇਹਦਾ मीनिंग की है। ओके, ਇਹਦਾ एग्जाम्पल है she always revises for her exam at the 11th hour, कि वो अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा 11th आवर दे विच स्टडी करदी है। मतलब सो ਇਹਦਾ मतलब की है कि वो अपने एग्जाम की जिहड़ी रिवीजन है वो 11th आवर च करदी है। मीनस कल पेपर है तो तुसी रात नूं ओहदी बैठ के रिवीजन लै रहे हो, वो मतलब हो गया। या फिर मोस्टली स्टूडेंट्स नाल होया ही होगा, जिवें कॉलेज के हुंदा है कि कल पेपर है, रात नूं याद आंदा है कि अच्छा कल पेपर भी है, रात नूं पढ़ना शुरू किया जाता है। ठीक है, सो उस टाइम जो तुसी पढ़ रहे होंगे हो, की कर रहे होंगे हो, 11th आवर दे विच तुसी स्टार्ट कर रहे होंगे हो पढ़ना। ओके, मतलब कोई भी चीज़ लास्ट मोमेंट ते करनी। इनू क्लॉक तो याद रखो, 11 तो बाद 12 आंदा है, तो क्लॉक दे विच 12 आवर्स होंगे हैं। सो लास्ट दे विच कोई काम करना। ओके, सो नैक्सट करते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर मीनस ये किसी ऐसे परसनस के लिए ये जो ईडियम है वह यूज़ किया जाता है जो आप दसना हो कि वो सेम ने। ठीक है, इको ही गलबात है उन्होंने। जिमें अपने को 2 परसन है, अगर आपने कहना है कि उन्होंने नेचर आपस में बहुत मिलते, उन्होंने इंटरस्ट्स बहुत मिलते हैं, तो आप ईडियम का यूज़ करांगे कि दीज 2 आर द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। मीनस ये दोनों इक्को जे ने। ठीक है, इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं हैगा। सो ਇਹਦਾ अगर मीनिंग देखिए, पर्सन ऑफ सेम कास्ट, पर्सन ऑफ सेम कलर, बर्ड्स विद सेम टाइप ऑफ फैदर, या पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा डी, दैट इज पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। तुसीं देखिया ही होगा जर्नली ਜਿਹੜੇ लोग सेम नेचर ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आपस 'ਚ बहुत बनती है। ठीक है, जिन्हों की नेचर थोड़ी अलग अलग होंगी है वो एक दूजे की कंपनी इन्ना पसंद नहीं करते। सो उन्होंने भी आप बोल सकते हैं कि जिन्हों की नेचर सेम है वो एक्चुअल दे विच बर्ड्स ऑफ सेम फैदर होंगे हैं। ओके, बिकॉज उन्होंने इंटरस्ट सेम होंगे हैं, उन्होंने सोच सेम होंगी है। ओके, सो यदा आंसर क्या होगा 4th। ये एग्जाम्पल देख लें। एक एग्जाम्पल है दे आर बर्ड्स ऑफ सेम feather, they both like football. Okay, so next idiom is to fight tooth and nail। ये वाला ईडियम उदों यूज़ किया जाता है जो ये दसना हो कि उन्हें अपने वालों जो भी कोशिश कर सकता सी वो सारी कोशिश की किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ऐसा आइडियम आप पहला भी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उसा ही मतलब है दा। ठीक है, टू फाइट टूथ एंड नेल मीनस कि किसी चीज़ के लिए पूरी डिटरमीनेशन के नाल फाइट करना जो थोनू चाहिए है उन्होंने प्राप्त करने के लिए। ओके, सो ਇਹਦਾ मतलब क्या हो गया, जो भी थोनू चीज़ चाहिए है उन्होंने प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड वे दे नाल फाइट करना। ओके, मतलब हर एक कोशिश करना अपने वालों जो तुसी कर सकते हो किसी चीज़ को अगर तुसी प्राप्त करना है। सो ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, टू फाइट हीरोइकली, टू फाइट काउवार्डली, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ਇਹਦਾ आंसर आऊगा डी, दैट इज़ टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ओके, हुण ਇਹਦੀ एग्जाम्पल देखते हैं। ही fought tooth and nail to keep his job। उन्हें अपनी जॉब बचाने के लिए हर प्रयास किया जो वो कर सकता सी। ओके, सो नैक्सट है
टू कॉल अ स्पेड ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਊਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਾਈਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਡ ਨੂੰ ਸਪੇਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ कि वो जो चीज़ जैसी है बिल्कुल उन्होंने वैसा ही दस रहा बिना कुछ छुपाए हुए ओके सो ये की करांगे टू बी फ्रैंक टू बी स्लाई टू बी रूड और टू बी डिप्लोमैटिक टू बी फ्रैंक ओके सो फर्स्ट इज द आंसर टू कॉल स्पेड अ स्पेड इज कि जो चीज़ जैसी है उन्होंने बिल्कुल वैसा दसना मतलब टू बी फ्रैंक ओके सो ये एग्जाम्पल देखते हैं विनय इज a person who calls a spade and is fearless ओके कि विनय जिहड़ा है वो एक ऐसा पर्सन है जिहड़ा कि स्पेड नूं स्पेड दसदा है ते वो किसे तो डरदा नहीं ठीक है तुसी कई लोगों को अपनी लाइफ च मिलते होंगे अगर तुसी गलत हो अगर तुसी सही हो वो थोनों बिल्कुल सही गाइड करनगे अगर तुसी गलत हो थोनों कहेंगे तुसी गलत हो अगर तुसी सही हो किसी चीज़ वो थोनों कहेंगे तुसी सही हो ठीक है तो उदों ये चीज़ तुसी यूज़ कर सकते हो सो अज दा लास्ट ईडियम है अ वाइट एलीफेंट जिहड़ा ईडियम है ये उदों यूज़ किया जाता है जदों आपां ने दसना होवे चलो आपां इहनूं एवें सोचते हैं सपोज करो कोई परसन है उन्हें थोनों एक वाइट एलीफेंट ही गिफ्ट करता ठीक है उन्हें अपने वालों की किया बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ थोनों गिफ्ट की है बट वो जी चीज़ है वो थोड़े कोई काम की नहीं हैगी तुसी वाइट एलीफेंट का की करोगे एक तरीके दे नाल वो थोड़े लिए बर्डन है ओके सो ये वाला जिहड़ा ईडियम है उहदा यूज़ किसी ऐसी चीज़ दे लई किया जाता है जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बट वो यूजलैस पोजैशन है ओके एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट फाउंड इन बर्मा a report by the government to give information huge and causal waste of human energy costly and troublesome possession useless to its owner so ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा फोर्थ मीनस इनू तुसी इमेजिन करके रखियो वाइट एलीफेंट तो कि अगर तुहानू कोई वाइट एलीफेंट गिफ्ट कर दोगा वैसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसकी बहुत कीमत हो बट वो थोड़े किसी काम का नहीं ओके सो ਇਹਦਾ आंसर आऊगा फोर्थ हुण ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल भी देख ही लैने ਇਹਦੇ ਲਈ द न्यू office block has become an expensive white elephant हुण देखो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया सपोज करो कोई पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे लगा के कोई ऑफिस क्रिएट किया है ठीक है बट वो ऑफिस उन्होंने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होया बिकॉज उत्थे उहदे कोल कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा तो जिहड़ा ऑफिस है जिहड़ा इन्ने पैसे लगा के उन्हें बनाया है वो की होया उहदे लई एक तरीके दे नाल वाइट एलीफेंट होया मतलब उहदे बहुत ज़्यादा पैसे लग गए इहदी बहुत कीमत है बट वो उहदे लई यूजलैस है या फिर सपोज ए परसन की किते ट्रांसफर होगी उहदा ऑफिस उत्थे ही बनया रह गया ठीक है मतलब कुछ भी पॉसिबल वे है आई होप तुसीं समझ गए होंगे ओके सो अज दे लई इन्ना ही अज आप 10 ईडियम्स डिस्कस किए आई होप ये वीडियोज़ थोड़े लिए हैल्पफुल साबित हो रही होंगियां ते थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करन च थोड़ी हैल्प कर रही होंगियां इंग्लिश तो जिन्ना घबराओगे ना उन्ने नंबर कटणगे जिन्होंने सोचोगे कि इंग्लिश च तो कुछ नहीं हैगा ठीक है सिर्फ माइंड की खेल है उन्ना थोनों ईजी लगूगा तो उन्ने मार्क्स तुसी अच्छे लोगे अगर आप देखिए ना जिहड़े पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने विच ना एक यही चीज़ होंदी है हर सबजैक्ट कर लैणगे इंग्लिश के विच मार्क्स घट आएंगे उहदा कारण ये है बिकॉज वो इन्ने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते ओके बिकॉज आपां पता ही है स्कूल दे विच भी कई स्कूल्स बहुत अच्छे होंगे बहुत वधिया ढंग नाल इंग्लिश पढ़ाई जाती है बट मोस्टली जोड़े स्कूल्स है उन्होंने इंग्लिश के उपर इन्ना ध्यान नहीं दिता जाता तो अपने दिल च एक डर बैठा होंगे कि मैनू तो इंग्लिश आ नहीं सकती ठीक है सो ये डर नूं कड्डो अपने मन दे विचों फिर देखियो थोड़े किन्ने अच्छे मार्क्स आएंगे प्रैक्टिस करते रहो रेगूलरली ये चीज़ों नूं रिवाइज करो रटन की बजाय ठीक है थोड़े हर पेपर क्लीयर हो जाऊगा सो अज के लैक्चर इन्ना ही मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।